Good evening and praise the Lord. We are on the first day of this month, a new month, September. And as you know that in this month and in coming days, we'll be having our devotion only on Fridays and Sundays. So we are coming back again on Sunday evening. Thank you and God bless you. Thank you for joining. And before we start, even you would like to like the page and share the page, go ahead and do it. God bless you. Let's all sing together. Give glory to our God. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Berkat ki barish, berkat ki barish भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। What we need this evening is God's blessings and showers of His blessings. और आज शाम को हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की उस आशीष और उसकी जो आशीष में वर्षा की जरूरत है। So shall we close our eyes for a word of prayer for God's blessing upon this devotion and upon all of us. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज शाम के समय परमेश्वर जब हम इस बाइबल दिन में जाएंगे, उसके अपरंपार बारिश और आशीष को हमें दे के आशीषित करने के लिए। Heavenly Father, we commit our lives to you. और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के दिन हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। We thank you for bringing us together to learn your word. हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको तू एक साथ लेकर आए हैं तेरे वचन को सीखने के लिए। We pray that you would minister to us and bless each one of us. हम तुझसे प्रार्थना है हम सबके साथ तू सेवकाई को कर, हम सबको तू आशीष कर। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen, amen. Thank you for joining. God bless you. And yeah, just want to see some of you are there already. Of course, Mary, Demda, Sham Singh, Jatin, Mukesh, Mona Singh, Ruba, Indra, Badul, my brother Sudipti. Thank you. There are so many of you watching. God bless you. Thank you for joining on time. अब परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। Well, we continue with our series on purpose-driven life. और हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में। God has created each one of us with a purpose. और परमेश्वर ने हम प्रत्येक को इस दुनिया में सृष्टि किया है एक उद्देश्य के लिए। So we are trying to understand what is the purpose
that I have for my life in this world. और हम इन दिनों ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या मकसद को रखा है इस संसार में, What on earth am I here for? और हम इस धरती पर किस कारण से हैं. Well, today we are trying to see, how to see life the way God sees it. और आज के शाम को हम ये बात में चर्चा का विषय पर अध्ययन करेंगे कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में. It is very important for us to have a godly perspective, a divine perspective of our life, because that is what is going to last forever. और हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है हम अपने जीवन की जो दृष्टिकोण हम इस प्रकार से कि दैवीय रूप से देखें जो हमेशा के लिए है. In James chapter 4 verse 14 second part it says, what is your life? और फिर याकूब के पत्र में इस प्रकार से लिखा उसके चौथा अध्याय के चौथा पद में कि जीवन क्या है. And it's a very interesting verse there, verse 4 verse 14. It says that why do you not even know what will happen to you tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. और याकूब के पत्र 4 के 14 में इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम जानते हो कल क्या होगा तुम्हारे साथ. सुन लो तुम्हारा जीवन ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती फिर लुप्त हो जाती है. That is what God looks at in our lives. और इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है. And there is a French novelist, is an essayist also, a historian I would say, or a writer. Her name is Anais Nin. She said, we don't see things as they are, but we see them as we are. और फिर एक फ्रेंच एक लेखक ने इस प्रकार से लिखी है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं वही हमारा जीवन है. See, that is very true that many a times, we are not able to get the right perspective of life, but we look at each of the situations the way we are and how we understand. और इस बहुत ही सच है वास्तविक है कि हम अपने जीवन को हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं जो हम हैं उसी के अनुसार. See, I want to tell you it's very very important for us to know or have a right perspective of life, because the way you see life is that's going to shape your whole life. और इसलिए बहुत जरूरी है हम सबको अपने जीवन के वास्तविकता को जानना, हमारी जो दृष्टिकोण उसको पहचानना बहुत जरूरी है. और फिर हम जिस प्रकार से सोचते हैं वही हमारे जीवन को एक रूप या आकार को देती है. And also how you define life, that is going to determine your destiny. और हम किस प्रकार से अपने जीवन को परिभाषित करती हैं वही हमें हमारे लक्ष्य को तय करती है. Because in destiny, what we are going to be, where we are going to be, how we are going to be, it all depends on what we do here on this earth and how we see life. और फिर हमारी मंजिल, हमारे जो लक्ष्य तक हम पहुंचने के लिए इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस धरती पर कैसे जीवन को जीते हैं. And because whatever perspective you have for your life, that depends there, your values and your relationships, your investment, everything will depend on how I and you look at life. और हम अपने जीवन को किस रीति से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और वो सब निर्भर होता है हमारे जो ये सब रिश्ते में, और हम संसार की जो भी बातों में, हम रिश्तेदारी में, और हमारे जो मूल्य है ये सब उस पर निर्भर होता है. You know this fact that people are different. और हम सब एक सच्चाई को जानते हैं कि हर एक लोग अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं. Their perspectives are different. और उनकी जो दृष्टिकोण है वो भी अलग अलग होती है. So in order to understand a person, और इसलिए एक व्यक्ति को पहचानने के लिए you can just ask this question, how do you see your life? सिर्फ आप एक सरल सा प्रश्न उनसे पूछिए कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हो. And many people will give different answers because they see their life very different than others see it. और हम ये पाएंगे कि हर एक लोगों के अलग अलग उत्तर होते हैं, क्योंकि हर एक लोगों की जो जीवन दिनचर्या होती है अलग होती है. Someone tried to ask people what do you see life as, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन को तुम किस प्रकार से देखते हो, and that person got so many different wonderful answers. और हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का उत्तर होता है. Some said it's like a circus. और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा जीवन तो एक सर्कस के जैसा है. Some said it's like a minefield. और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा ये जो जीवन एक सुरंग क्षेत्र के जैसा है. And then some said it's like a roller coaster. और कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो एक झूला होता है जो रोलर कोस्टर उसके जैसा होता है. I remember once I was on a roller coaster. Oh my goodness, I would never want to get back there. And it has its own excitement, but it's horrible.
और फिर मैं स्मरण करता हूँ कि एक बार मुझे उसमें बैठने का अवसर मिला उस झूले पर, और ये बहुत ही मतलब डरावने वाली एक झूला है। Some love it, some like it, but if life is like a roller coaster, I don't want to be. I mean, it's not that I don't look at life in that way, but there are people who looks at differently than I look at life. और कुछ लोगों को बहुत पसंद है और कुछ लोगों को नहीं, और मेरे संदर्भ में कहा जाए तो मुझे पसंद नहीं अगर मेरा जीवन उस तरीके का होता तो। And some said life is a puzzle. और कई कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो जीवन है एक पजल, एक खेल के जैसे है। And some said it's like a journey, and some said it's like dance. और कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन एक यात्रा है, कुछ लोग बोलते हैं पहेली है, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक उछलने कूदने के जैसा है जीवन। Some feel it's like a conveyor belt that you have in the airport. It just goes round, around, around. और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन ऐसा है जो एयरपोर्ट वगैरह में जो लगेज लेने के लिए हम जाते हैं, जो वाहक पट्टा के जैसे जो घूमते ही रहती है हमेशा। And some said that life is like like a 10-speed bicycle in which we don't use any gears. और किसी ने इस प्रकार से कहा कि जीवन ऐसे है कि एक ऐसी साइकिल जिसमें 10 गियर है लेकिन एक का भी इस्तेमाल करना नहीं मालूम है। Well, and they keep on, the answers keep on coming in because people see different life differently. और फिर जब हम पूछेंगे तो उत्तर कई प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच जीवन के संदर्भ में अलग अलग है। Well, if I ask you the question, what is life is like, what is the image that comes into your mind? और यदि मैं ये सवाल करूं कि जीवन कैसा है, तो आपके मन में, आपके दिमाग में कौन सी बात आएगी? Because everyone has a metaphor or a symbol how they see their life as. क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक प्रतीक होता है कि उनके जीवन का किस प्रकार से प्रतीक होगा करके। Consciously or unconsciously, that is in your mind. और जानकर या अनजान में इस प्रकार के विचार हमारे मन में होते So हैं। it is how you look at life is. That's what it's all about. और ये महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं। So many people, they express their symbol of their life through different ways. They want to express it. Sometimes like how they're clothed, the jewelries they put, and the cars they drive, the hairstyle they have, not mine, like different people. So it's all different. People look at all different. और हर एक व्यक्ति अपनी जो जीवन की जो प्रतीक को इस प्रकार से देख, कुछ लोग, सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग वो सोचते हैं कि कपड़े के द्वारा मेरे पहचान को बनाएंगे, कुछ लोग गाड़ियों के द्वारा और अलग अलग रीतियों के द्वारा उनकी जो सोच होती है अपने जीवन के प्रति, वो लोग उस प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं। But remember the unspoken symbol that you have for your life that affects you a lot. लेकिन एक बात को स्मरण रखिएगा कि जो मतलब हम जिसको हम बिना बात किए हुए जो अंदर गुप्त रहने वाले जो बातें हैं वही हमारे जीवन को एक रूप देती है। That is the symbol, the metaphor they have for their life. It influences their life. और उनके जीवन की जो ये प्रतीक होती है, उनकी जो सोच होती है, वही उनके जीवन को आकार देती है। That will determine your expectations. और वो उनकी जो मंजिल है, जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर वो निर्भर करती है। Your values, your relationships, how you spend your money, everything will be depending upon that picture of the symbol or metaphor that you have about your life. और आपके जीवन की जो आपकी जो रूपरेखा, आपकी जो प्रतीक आपके जीवन में मन में जो है, वही आपके जो मूल्य को, आपके संबंधों को और सब कुछ उस पर वो निर्भर करता है। Even your goals and your priorities will be set on how you look at life, based on that. और ये उस पर निर्भर होती है कि हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करती हैं। Well, if you think life is a party, then you will be primary value of your life is having fun all the time. यदि आप सोचते हैं कि जीवन सिर्फ एक पार्टी जैसे जश्न जैसा है, तो आप हमेशा उसको एक मजाकी रूप में लेने की कोशिश करेंगे। And some people, they think that life is like a race. और कुछ लोग सोचते हैं कि जो जीवन एक दौड़ के जैसे हैं। So if you see life as a race, then you'll always value speed, doing things faster, doing in a hurry, that kind of lifestyle. और यदि आप अपने जीवन को एक दौड़ के जैसे सोचते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे उसको जल्दबाजी, उसको किसी भी तरह से पूरा करने के लिए आप उसको जल्दी में करेंगे। I'm something like that. और मैं Someone like that. और मैं कई बार इस प्रकार से करता हूँ। Because I want to be before the meeting, there on time, before time, and all those, because I want things to be taken, because my looking at life is different.
और फिर अगर मुझे मीटिंग जाना है तो मुझे जल्दी से पहुंचना है। इस प्रकार से मेरी जो दृष्टिकोण है वो है। But some people look at life as a marathon. और कई लोग अपने जीवन को एक मैराथन जो लंबी दौड़ के रूप में देखते So हैं। if your life symbol is like marathon, then you value endurance, things, taking care of things, relaxed way in a manner that is very much relaxed. और यदि आप अपने जीवन को एक लंबी दौड़ के जैसे देखते हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आराम के साथ उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। But there are some people who want to see their life as a battle or a game. और कुछ लोग अपने जीवन को देखते हैं कि खेल के जैसे, युद्ध के जैसे। For them, winning is very important. और उनके लिए क्या है कि अपने जीवन में जीत को हासिल करना बहुत जरूरी है। Some people, they somehow wants to win the game. Whatever it happened, they want to win. They cannot take, losing the game at all. That's because their symbol of life is different. और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी जो सोच होती है, जो प्रतीक होती है कि उनका जीवन इस प्रकार से है कि उनको हमेशा सफलता चाहिए, वो उसको देखते हुए अपने कार्य को करते हैं। Well, what is your view of life? लेकिन आपके दृष्टिकोण क्या है आपके जीवन के प्रति? What is that metaphor or a symbol that you base your life on? और आप अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार के एक सोच या प्रतीक को अपने मन में बनाए हुए हैं? Do you see life as a marathon or a race or a battle or a game? What do you see life as? और आप अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं कि क्या वो एक लंबी दौड़ के जैसे है, या फिर महज एक दौड़ है, या फिर युद्ध, या फिर खेल के रूप में आप अपने जीवन को देखते हैं? These are all generally accepted ideas or metaphors, but I am going to tell you something different from the Word of God. और ये सब जो बातें हैं एक आम साधारण सी बातें हैं जो जीवन को जीने की एक शैली है। So it's very important that we need to take our life. If you are running our life based on those, you have to take it off from there and place it on the Word of God. और लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि हम वास्तव में अपने जीवन के मकसद में हम उसको पाना चाहते हैं तो हमें ये जो साधारण सी जो बातें जो आधारित है उसको हमें निकालना होगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन के दृष्टिकोण को हमें सेट करना होगा। And when you do, then only you will be able to fulfill the purpose that God has for our life. और यदि आप ऐसे करते तभी परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में जो मकसद को रखा गया है, जो उद्देश्य को रखा गया है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। So there are some biblical metaphors of life. और बाइबल में कुछ बाइबल के सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रतीक दिए गए जीवन जीने के लिए। And that we see Romans chapter 12 verse 2 it says. और वो है रोमियो उसके 12 के 2 में दिया गया है। It says that do not conform yourself to the standards of this world. और उसमें इस प्रकार से लिखा कि संसार के सदृश ना बनो। But let God transform you inwardly by a complete change of your mind. परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। Then you will be able to know the will of God. तब तुम जान जाओगे कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है। So if we conform ourselves with those things, we will not be able to understand the will of God. But we need to have a transformed mind to relate to God and understand what God wants us. और जब तक हम इन सारे संसार की बातों के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं तब हम परमेश्वर के आधार पर उस पर रखे गए सिद्धांत पर अपने जीवन को चला नहीं पाएंगे। और इसलिए हमें क्या करना है, इन सारी बातों को छोड़ते हुए परमेश्वर के सिद्धांत के हमें अपने आप को हस्तांतरित करना है। I would like to give you 3 metaphors of life. 2 will be looking in this chapter. And third one we look in the next chapter. और मैं आपको 3 जो प्रतीक है जो बाइबल के आधार पर उसको बताना चाहता हूँ। 2 जो प्रतीक है इस अध्याय पे है और तीसरा वाला अगले अध्याय में है। So first one is life is like a test. और सबसे पहला जो प्रतीक है कि जीवन एक परीक्षा है। So life on this earth is a test. और इसका अर्थ है कि इस धरती पे हमारा जो जीवन है वो परीक्षा है। And this metaphor that you see throughout the Bible. और ये जो प्रतीक को आप पूरे बाइबल में पा सकते हैं। God continually tests people for their faith, for their character, for their obedience, so and on. और आप देख सकते बाइबल में पा सकते कि परमेश्वर ने कई लोगों की परीक्षा ली, उनके स्वभाव को परखने के लिए, उनके विश्वास योग्यता, इन सब बातों को परमेश्वर ने परखा है। God tests people's love, God tests people's integrity, God tests people's loyalty, all those. और परमेश्वर ने लोगों की वफादारी और उनकी विश्वास योग्यता, उनकी प्रेम के लिए उनको परखा है। Do you know the words like test,
trials, temptations, although there are 200, over 200 times those words are used in the Bible. और आप जानते हैं कि 200 से ज्यादा इन शब्दों को प्रयोग किया गया है, जो परीक्षा, जो परखना, इस प्रकार की बातें दी गई हैं। God tested Jacob when he had to work extra years to get Rachel as his wife. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक की परीक्षा, याकूब की परीक्षा ली उस राहेल को प्राप्त करने के लिए, जो उसने ज्यादा समय को व्यतीत किया। And then we know that God tested Adam and Eve in the Garden of Eden. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा की जो परीक्षा ली उस अदन की बगीचा में। Remember, David was tested many a times and he failed many times. और परमेश्वर ने दाऊद की परीक्षा कई बार ली और कई बार वो विफल भी हुआ। And there are many other people who have passed the test. और फिर हम देखते हैं कि कई लोग अपनी परीक्षा में उन्होंने सफलता को भी प्राप्त किया। Remember the test of Joseph? और आप स्मरण करते हैं जो यूसुफ की जिंदगी की परीक्षा, Ruth, Esther and Daniel. और रूथ, एस्तर और दानियल की परीक्षा। They had many tests but they have passed the test. और उनके जिन कई परीक्षाएं, लेकिन उन सारी परीक्षाओं में वो सफल हो गए। Remember, our character is developed through testing. आप लोग एक बात को जान ले कि हमारे जो जीवन, हमारे जो चरित्र को परखा जाता है परीक्षाओं के द्वारा। And our character is revealed by testing. और हमारे जो चरित्र प्रकट होती है परीक्षाओं के द्वारा। Because all of life is a test, continuous test, everyday test. और हम सब जानते हैं हमारा जो जीवन है हर दिन हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। Well, our son is having, the older one is having, that's why he is not here, he is having tests. But that is like once in 3 months, something Yeah. like that. Not everyday test. Okay, so but we all face everyday tests. और हम आप सब जानते हैं कि हमारा बड़ा बेटा आज नहीं है क्योंकि उसकी परीक्षा चल रही है, लेकिन वो परीक्षा 3 महीने में एक बार होती है। लेकिन हम जब अपने जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन में हर दिन परीक्षाएं आती हैं। Remember, I and you are tested every day. और अब एक बात को जान ले कि आप और मैं हर दिन परीक्षा से होकर जाते हैं। God constantly watches your responses. और परमेश्वर एक का एक निरंतर आपके ऊपर नजर देखता है। How you respond to people, how you respond to problems, how you respond to success and conflict. और फिर वो आपको देखता है कि आप किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं और किस प्रकार से आप जो मतभेद हो रहा है उसका किस प्रकार से आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर आपको दिखता है। When you are sick, how you respond. जब आप बीमार हो जाते तो हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, When उसको परमेश्वर देखता है। when you are disappointed, how you respond. और जब हम निराश हो जाते तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। Even when the weather changes, how do you respond? और जब मौसम बदलता है तो हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, उसको भी परमेश्वर देखता है। You know, I know some people, I mean, they are not at all happy about the weather. और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो हमेशा शिकायत करते हैं, जैसे भी मौसम, हर एक मौसम के लिए उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक Today होती it's है। very hot. आज बहुत गर्मी है, Today it's very humid. आज बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो रहा Today है, it's a very cold day. और आज तो बहुत ठंड का मौसम So, है। you know, every time we need to learn to thank God for every situation because that moment we are going through a test. और फिर हमें हर मौसम में, हर प्रकार की परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है। Simple things like when you're walking with somebody, how you open the door for someone to get in. God looks at that. और एक साधारण सी बात, यदि हम किसी के साथ जा रहे हैं और हम किसी के लिए दरवाजा खोल के दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर हमें देख रहा है। When you are very polite, talking to a clerk in the bank or a waiter at the restaurant, wherever it is, so God watches each and every response that we have. और फिर हम किसी दफ्तर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ के क्लर्क से हम किस प्रकार से बातें करते हैं, या फिर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ के वेटर से किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, उन सब बातों को प्रभु देखता है। One thing we know that we do not know all the tests that God is giving us on a daily basis. और हम एक बात को जानते हैं कि जो भी परीक्षा आती है, सब परीक्षा को परमेश्वर हमें नहीं देता है। But there are, the Bible talks about some situations where God is definitely watching of course God watches over us all the time, but some tests He is, definitely making note of how our reactions are. और जरूर परमेश्वर हमें हमेशा निहारता रहता है, लेकिन बाइबल में बताया कि कुछ समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमें परखता है कुछ बातों के द्वारा। Well, some major changes happen, how we react to that. और बहुत बड़ी बदलाहट होती है तो हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। Delayed promises, God has promised you something that has not happened.
and you're waiting for the promise of God, and when the delay happens, how do you respond to it? और परमेश्वर ने हमसे कुछ वायदा किया, कुछ प्रतिज्ञा किया और उसमें विलंब हो जाता है, तो हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया को करते हैं? Some impossible problems, how do you respond to it? और कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जो एकदम असंभव जैसा होता है, तब हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं? Unanswered prayers. You have been praying for a thing for last 10 years, the prayer is not answered. How do you respond to it? और हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 10 साल तक उसका जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिलता है, तब हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? उसको प्रभु देखता है। Undeserved criticism, where you have not done anything wrong, but people criticize. See, how do you respond to it? और फिर जब हम कुछ गलती नहीं करते लेकिन लोग हमारी आलोचना करते, तो हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं? उसको परमेश्वर देखता है। Even some senseless tragedies, that some tragedies have happened. You're not expecting it. It's a tragedy. You have no answer for it. But how do you respond to it? God looks at that also. और कुछ ऐसी दुर्घटना जिसकी हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं, एक दिन दुर्भाग्यवश हो जाता है, तब हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? उसको परमेश्वर देखता है। See, all of us can say that God has been, He has been testing, not in a wrong way, but to reveal our character and to develop our character. God takes us through different, different situations of life. Those are tests in our life where we reveal ourselves and we depend upon God for us to develop our character. और परमेश्वर हमारे जो चरित्र को वो विकसित करता हमारी परीक्षा के द्वारा, और वो हमें निखारना चाहता है। इसलिए कई बार हमारी जो परीक्षा आती है कि हम उसे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, और वो हमारे चरित्र को वो बनाता है। Maybe today you are going through a test in your life. हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में कुछ परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। Remember, every test is an opportunity for us to show to the Lord and to respond to that in a godly way, that God's name is glorified and He gives us more strength to continue in our journey. और एक बात को स्मरण रखिएगा, यदि आप आज किसी भी प्रकार की परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति हमेशा सकारात्मक रहे, क्योंकि परमेश्वर उन परीक्षा के द्वारा आपको एक जय देना चाहता है, एक सफलता को देना चाहता है। Well, some of you are thinking, oh, I have failed the test. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने अपनी परीक्षा में मैंने विफल हो गया। It's okay. Now God is giving you another opportunity that you could pass it. और आप निराश होने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, परमेश्वर दूसरा अवसर देगा कि आप आने वाली परीक्षा को आप सफल हो जाए। God will never give you a test which is more than beyond your ability or the grace of God that you have in order to win that, pass that test. और परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में ऐसी परीक्षा को नहीं देगा जो आप उसको आपके सहने से बाहर है, और आपको जो परमेश्वर अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह से वो बाहर है कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। Life is a test and life is an opportunity for us to reveal the way that God is developing our character and reveal ourselves and strengthen ourselves in the Lord and grow in the Lord on a daily basis. और परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को देखकर हमारे चरित्र को विकसित करना चाहता है, और फिर वो हमारे जीवन को बनाना चाहता है हर दिन दैनिक जीवन के। We'll continue on Sunday evening. We'll wait for that, and I want you to come back and let's all together be in the presence of God. So thank you. God bless you, and we will have a song worshiping God. Then we want to pray for each one. और रविवार को हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, और हम एक साथ मिलकर प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताने के लिए जीवन समर्पित करेंगे। तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 We want to pray for you this evening. आज शाम हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। You know, the presence of God is in all our homes. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हर एक घरों में है। I just want to take some more names. Girija Bhatt, Mukesh, Rakesh, John, Shamil Minch, Bas Nitin, and many of you want to sing. Thank you and God bless you thank you for joining. May the Lord continue to bless each one of you. और परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष को दे। We need to pray for Reena. She is having body pain, that God would touch Reena and heal her tonight. और हम बहन रीना के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी बहन को छू के चंगाई देने के लिए। And I know there are many needs that are represented out there. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी प्रार्थना हमारे बीच में है। God knows each of your needs. और परमेश्वर प्रत्येक की आवश्यकताओं को जानता And है। God is able to meet our needs. और परमेश्वर सक्षम रखता है हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। Some of you have been praying for a certain need for a long time now. और आप में से कुछ लोग किसी विषय की लंबे समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं। I want to tell you that do not lose your heart. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप धीरज को ना खोएं। God will answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। Sometimes God is testing us. और कुछ समय परमेश्वर हमें परख रहा है। You know, that test is not a negative, it's a good test, and God will reward you for that. और ये जो परीक्षा हमारे नकारात्मक बातों के लिए नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर प्रतिफल देना चाहता है, इसलिए वो परीक्षाओं को दे रहा है। Hold on and wait upon the Lord. और इसलिए आप उसको थामे रहें और परमेश्वर की समय के लिए प्रतीक्षा The करें। answer is on the way. और जो उत्तर अभी मार्ग में ही है। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Tonight we are going to pray together. आइए हम रात एक साथ मिलकर प्रार्थना That करें। God would answer the prayer that you have in your life. और आपके जीवन की जो प्रार्थना है उन पर प्रार्थना परमेश्वर उत्तर सुनने के लिए। If you are sick tonight, God is going to touch you and heal you. और आज रात्रि को अगर बीमार है तो परमेश्वर को छू के चंगाई को देगा। If you are broken in your heart tonight, God is going to heal your heart and fill you with peace and joy. और यदि आज रात्रि को आप मन से टूटे हुए तो परमेश्वर आपको शांति देगा और आपको अपनी शांति और आनंद से भर देगा। Any miracle that you are looking for, Jesus is more than able to do that miracle for you. आप जो भी चमत्कार अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य उस कार्य को करने के लिए। Shall we close our eyes for prayer? आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, once again we come before your throne of grace. प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, ये एक बार हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। We thank you for your goodness and your faithfulness in our lives. हम तुझे धन्यवाद देते तेरी विश्वास योग्यता हमारे जीवन के लिए। Lord, we know that our needs are not beyond your ability to take care of it. You are the creator of the universe, and with your word you have created everything in this universe. और परमेश्वर तूने अपने एक शब्द के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया और तेरे द्वारा हमारे जीवन की कोई भी कार्य असंभव नहीं है। You are an almighty God. तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर So है। we pray for all the needs of your people. और इस समय सारे लोगों की जरूरत के लिए हम प्रार्थना करते In the हैं। mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य नाम से I pray for miracles to happen tonight. और हम प्रार्थना आज रात्रि को चमत्कार होने दे। Lord, whatever needs your people have, I pray that you would meet their needs, O God. हम प्रार्थना परमेश्वर तेरे लोगों की जो भी जरूरत है उन जरूरतों को तो पूरा कर। We unite our hearts to pray for Sister Reena. और हम अपने दिलों को ये करके बहन रीना के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं। touch your child and heal her right now in Jesus' name. और हम प्रार्थना करते प्रिय बेटी को इस वक्त छू के तू चंगाई को दे। And whatever needs your people have, और तेरे लोगों की और भी जो भी जरूरत है meet all their needs, O God. उनकी सारी जरूरत को पूरा कर। Thank you, Lord, once again for
ministering to our heart this evening. धन्यवाद देते हैं शाम के समय एक और बार तूने हमारे जीवनों से सेवकाई को किया है। We surrender our lives to you. हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते Lord, हैं। we know that you are always there for us and with us. और हम एक बात को जानते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है और हमारे साथ है। Help us to continue to hold your hands and Lord move on in this journey, because we know that you are the one who leads us and guides us, O Lord, and you are the one who gives us victory. और प्रार्थना करते परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य कि हम तेरे हाथ को थामे रहे और इस यात्रा में तेरे साथ हम आगे बढ़ सके, जिससे कि हम विजय को प्राप्त कर पाए। Thank you, Jesus, for hearing and answering धन्यवाद us. देते परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया। We give you all the glory. हम तुझे महिमा देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। And all of us together और say, हम एक साथ मिलकर कहें Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको So आशीष see दे। you all on Monday evening at 7. Sunday. Sorry, Sunday evening at 7 p.m. और आप सबसे मिलेंगे रविवार को शाम ठीक 7 बजे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन।